Okay, dear children, I hope that you must have opened the book, A Question of Trust, next chapter of Footprints Without Feet. But before that, let's see the information of this videos. 21st May 2020, class 10, English, Footprints Without Feet, we are reading students. And lesson number 4, we are going to discuss. By the chapter is A Question of Trust. A question of trust, every one of you can understand the meaning of this, that the one is talking about the trust and there is a question mark on the trust, where it is to be maintained, built, or where it is to be broken, means a question basically of trust, where it is, by a Victor Canning. This is lecture number 1. We are going to see. Let's go ahead. Let's read something about this author, Victor Canning. June 16, 1911 to February 21st, 1986, was a prolific British writer of novels and thrillers. He has written novels and thrillers, adventurous writing he has done in his life, who flourished in the 1950s, 60s, and 70s. That means 30 years he worked. He was personally recent writing now memoirs and giving relatively few newspaper interviews. So dear children, the few words you must have seen on the screen, you'll find out their word meanings yourselves basically. If there is any problem, you can discuss with me in the next lecture. This will be a type of task for you people. So let's go ahead by the reading of the chapter, students. I hope that it's all visible to all of you and we all are trying to understand, grasp the things so that you can manage it. One thing you need to do, as you open the book, you should have a pencil with you in your hand whenever and wherever we get the difficult words, so that you can just mention, underline them, and if you understand, if you have enough time, you can write it down on your notebook, the word meanings as I explained. The rest you can find it out from the dictionary also, right everyone? So let's start. A question of trust. Meaning of this chapter, literally we have understood, but based on the story we are going to read, that matters a lot, dear children. Let's start. It is said that you must set a thief to catch a thief. ये एक कहावत है. इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कहा जाता है कि किसी एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर को लगाना पड़ेगा, या फिर अपने दिमाग को जो है चोर की तरह यूज करना पड़ेगा टू कैच अ थीफ. एक चोर को पकड़ने के लिए ये कहा जाता है, ये कहावत है बेसिकली, उसकी तरह ही सोचना पड़ेगा. बट इट इज ऑल्सो सेड, लेकिन हमारा ऑथर कहता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. चोर जो होते हैं उनके बीच में भी कायदे कानून होते हैं, वो भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं. दे रिगार्ड वन अनदर, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं. सो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि हम एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर को लगा दें? दैट्स नॉट पॉसिबल. But let's see when we practice the chapter, when we read the text, which saying does this story illustrate? Now, the author is asking to us or telling us simultaneously, which saying does this story illustrate? We are going to read the story. Let's find out कि इन दोनों स्टोरी में से ये जो चैप्टर हम रीड करने वाले हैं, जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं, ये कौन सी स्टोरी को इलस्ट्रेट करता है. So dear children, read and find out. These are two questions basically from starting. क्या question है? What does Horace Denby like to collect? We can call it Denby and Denby both. What does Horace Denby like to collect? क्या पसंद करता है collect करना Horace Denby? This we will read out, and we have to mention this in the notebook as a question answers task. Why does he steal every year? Why does he steal every year? और हर साल वो चोरी क्यों करता है? What is the reason basically behind this? We need to find out when we go to read this.
So dear children, let's come to the text. What we find, everyone thought that Horace Tenby was a good, honest citizen. कि भाई जो ये हॉरेस टेनबाय है, हर कोई ये सोचता था कि बड़ा अच्छा ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried. ये 50 साल का था लगभग और अनमैरिड था अभी तक. Very thinkable thing, like 50 year and unmarried, and he lived with a housekeeper. और वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता था. The one who took care of his house. Taking care of house means doing things at the home basically. घर पर सारे काम करने वाला. The one who was housekeeper, उसके साथ वो रहता था. Who worried over his health, जो कि जो है जो हाउसकीपर था उसके बारे में बड़ा चिंतित रहता था, उसकी हेल्थ के बारे में. Over his health. In fact, he was usually very well. वास्तव में कई बार क्या होता है वो बताता है कि भाई he was usually very well, बड़ा सही रहता है. नॉर्मली, ऑफन, प्राय, बिल्कुल, यूजुअली वो कहता है. एंड हैप्पी, और खुश भी होता है. एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर. हे फीवर, स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिस वर्ड विद पेंसिल. हे फीवर इन समर. हे फीवर मीन्स इज अ टाइप ऑफ एलर्जी इन विच यू गेट द स्नीज, लाइक छींकते हो, एलर्जी हो जाती है, और ये बेसिकली समर में होती है. इट हैपेंस इन द समर, हे फीवर. सो कभी कभार जो है उसको हे फीवर की प्रॉब्लम हो जाती है. He made locks and was successful enough at his business. वो locks बनाता था. Locks means ताले बनाता था. And success, सफल था बिल्कुल अपने बिजनेस में. At his business to have 2 helpers. और उसके पास उसके बिजनेस में 2 उसके अपने हेल्पर्स भी थे who helped him through the work, so that he could manage the things in a proper way without having any trouble or a problem. So that we can say they were the assistants or helpers to him. With them, he was running his business in a proper way. Yes, Horace Tenby was good and respectable. ऑथर कहता है हाँ, हॉरेस जो था रिस्पेक्टेबल भी था, सम्माननीय भी था और अच्छा भी था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन वो कहता है ये कंप्लीटली, पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. पूरी तरह से ईमानदार नहीं था ये हॉरेस. 15 years ago, some incident this author is telling about this Victor Canning. Some incident he is going to discuss with us. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले जो है हॉरेस ने एक सजा काटी थी. सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेंगे. इट मींस सजा. आफ्टर कमिटिंग एनी क्राइम और मेकिंग एनीथिंग रॉन्ग थिंग्स बेसिकली. सो फर्स्ट टाइम उसने जो है सजा काटी थी इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. जेल की लाइब्रेरी के अंदर इसको सजा मिली थी. He loved rare, expensive books. और वो जो है बड़ी रेयर जो बुक्स होती हैं और जो काफी एक्सपेंसिव, कॉस्टली होती हैं, उनको पढ़ता था. So he robbed a safe every year. और वो जो है ना हर साल एक सेफ, तिजोरी को जो है रॉब किया करता था, डाका डालता था, चोरी करता था. एक सेफ की हर साल एक. Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो ये प्लान करता था केयरफुली, बड़े सावधान तरीके से कि भाई what he would do, कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. और चोरी वो इतनी करता था, stole enough to last, ऐसी चोरी करता था और इतनी चोरी करता था कि जिससे कि उसके 12 मंथ्स, 12 महीने का खर्च आसानी से निकल जाए. एक्सपेंसेस जो है उसके निकलते चले जाए. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और सीक्रेटली मीन्स चुपचाप जो है वो बुक्स को परचेज कर लेता था. ही लव्ड, जिनको वो ज्यादा लाइक करता था, पसंद करता था. थ्रू एन एजेंट, किसी एक एजेंट के द्वारा. मीन्स ओपनली ही डिडंट यूज टू गो टू परचेज द बुक्स. By like through agents he used to purchase the books. Now walking in the bright July sunshine,
बिल्कुल रोशनी है, सूरज निकला हुआ है, सन की जो शाइनिंग है पूरी तरह से है, जुलाई का टाइम है. He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. और he felt sure, उसको अपने आप में ये बिल्कुल महसूस हुआ, बिल्कुल sure that this year's robbery, इस साल जो वो चोरी करने वाला है, जो रॉबरी करने वाला है, डाका डालने वाला है, was going to be as successful as all the others. All the others means he has been doing this since 15 years. 15 साल से ये करते हुए आ रहा है. 15 साल पहले उसको जेल हुई थी. अदर्स, जो रॉबरी आज तक उसने की है, जितनी सक्सेसफुल वो रॉबरी आज तक हुई है, ये जो अब रॉबरी वो करने जा रहा है, दिस विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स, जैसे आज तक जो अदर रॉबरी उसने की है और जितनी सक्सेसफुल वो रही है. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. See children, for 2 weeks, पिछले 2 सप्ताह से, 14 days, he had been studying, ये पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है उस घर को. मीन्स स्टडिंग मीन्स जांच रहा है, परख रहा है, उसके बारे में एजुकेशन ले रहा है, उस घर के बारे में, जो कि शॉर्टओवर ग्रेंज इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पर वो घर है. लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों के बारे में देख रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, एंड इट्स पाथ्स, और उसका वे ऑफ गोइंग देयर इन अ सीक्रेटली, एंड इट्स गार्डन, और उसके गार्डन के बारे में, हाउ इट इज गोइंग. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange, Grange is the name of the place or the name of the house where he was just going to rob. इस दोपहर जो है, the 2 servants, 2 आदमी जो हैं, 2 servants जो हैं, जो उस घर में काम कर रहे थे, who remained in the Grange, जो उस घर में थे, while the family was in London, और जबकि जो फैमिली, जिस फैमिली का ये घर था, वो सारे के सारे लंदन में रह रहे थे. had gone to the movies, जो कि मूवी देखने के लिए जा रहे थे. मूवी देखने के लिए कौन जा रहे थे? the servants, जो servants वहां पर थे. Horace saw them go, Horace उनको जाते हुए देख लेता है, वो जा रहे हैं, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. Now you see, उनको जाते देख करके वो खुश होता है, इसके बावजूद कि भाई उसको थोड़ी सी टिकल यू कैन अंडरलाइन, दिस मींस थोड़ा सा गुदगुदी महसूस करना, of hay fever in his nose. Hay fever means, again I told you, kind of an allergy, जिससे कि उसको छींक ज्यादा आती है, छींक आती है. In his nose, he came out from behind the garden wall, और गार्डन वॉल के पीछे से वो आगे आता है. His tools carefully packed in a bag on his back, और उसने जो टूल्स वो यूज करता था फॉर द रॉबरी, वो सारे के सारे टूल्स जो है उसने पैक कर रखे थे अपने एक बैग में, जिसको अपनी बैग पर लेकर के वो वहां पर आया हुआ था. There were about 15,000 pounds. Now you see, what is he going to rob? What will he find there? उसका आइडिया है कि भाई there will be about 15,000 pounds worth of jewels. वहां पर जो है 15,000 पाउंड्स की वर्थ ऑफ ज्वेल्स, ज्वेलरी है, इन द ग्रेंज सेफ, जो ग्रेंज हाउस है उसकी सेफ में. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उनको वन बाय वन भी बेचे, he expected to get at least 5,000, और उसको उम्मीद थी कि अगर वो वन बाय वन उसको बेचता है तो उसको लगभग 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे. He was sure about this. Enough to make him happy for another year. उसके लिए पूरा साल अच्छे से निकलने वाला था, पूरे साल वो खुश रहने वाला था अगर उसको 5,000 पाउंड्स मिल जाते हैं. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Autumn season के अंदर next 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बुक्स अभी लॉन्च होने वाली थी, सेल के लिए आने वाली थी ऑटम में. So he was thinking he would live life entire year happily. Now he would get the money, he wanted to buy them. और उन बुक्स को परचेज करने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी, मनी की जरूरत थी, और वो उसको जो है अभी मिल जाएंगे. He would get the money basically. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside.
और उसने क्या देखा कि जो हाउस कीपर थे, जो वहां पर काम कर रहे थे, उसने उनको देख लिया था, चेक कर लिया था व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग द थिंग्स, कि भाई वो जो है की को जो है किचन की डोर के आउटसाइड रख करके जाते हैं, बाहर साइड हुक के ऊपर टांग करके चले जाते हैं, हैंग करके चले जाते हैं। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने अपने हाथों में, टुक द की एंड ओपन द डोर, की को लिया और डोर को ओपन किया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो इतना केयरफुल था कि चोरी करने से पहले किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स और एनी टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ही डिडंट लीव, कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं छोड़ता था जिससे कि उसको जस्टिफाई किया जा सके, पहचाना जा सके, फिंगरप्रिंट्स अल्टीमेटली। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, और किचन में एक स्मॉल छोटा कुत्ता जो है लेटा हुआ था, लाइंग किया हुआ था। It stayed, underline this word, stayed, students. You must have seen the dogs. When you cross the dogs, if these are pet, they start moving, shaking their body, they start moving their body or their tail, basically अपनी पूंछ को हिलाने लगते हैं. So stayed means वो भी हिलने लगा, noise करने लगा. A lovely type noise, made a noise and moved its tail in a friendly way, और अपनी पूंछ को जो है वो फ्रेंडली वे में हिलाने लगता है. All right, Sherry, Horace said as he passed. जैसे ही हॉरेस उसके पास से गुजरता है, उसको बोलता है, all right, ठीक है शेरी, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. Sorry students, you must have the books, I hope. I forgot to just forward this. Okay, let's just revise this. So, some students might not have books. 1,000 enough to make him happy. I'm repeating this for another year. Means 5,000 जो है वो another year के लिए अपने safe रख सकता है, where he can live happily. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और autumn में जो है 3 books अभी new sale के लिए आने वाली थी. He could purchase them with the help of this money. Now he would get the money, he wanted to buy them. और वो जो है with the help of that money इन books को purchase कर सकता है. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. और वो क्या देखता है कि भाई housekeepers ने जो है when he was examining the house, basically getting information, gathering information about the house, कि भाई जो housekeeper थे वो उस घर की की को जो है किचन की डोर के आउटसाइड हैंग करके चले जाते थे, लटका करके चले जाते थे. He put on a pair of gloves, took the key. पेयर ऑफ ग्लव्स उसने पहने और की को लिया, एंड ओपन द डोर, और डोर को उसने फिर ओपन किया. He was always careful not to leave any fingerprints, और वो बड़ा सावधान रहता था हमेशा से, not to leave any clue, किसी भी तरह के क्ल्यू को वो नहीं छोड़ता था, स्पेशली फिंगरप्रिंट्स, जिससे कि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके. A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा कुत्ता जो है किचन में लेटा हुआ था. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. Stirred means होता है to shake or to move the body. अपनी बॉडी को वो हिलाता है, थोड़ी सी नॉइस करता है, एंड फ्रेंडली वे में अपनी टेल को जो है मूव करता है बेसिकली. All right, Sherry, Horace said as he passed. और जैसे ही हॉरेस उसके पास से गुजरता है, वो कहता है कि ठीक है शेरी, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. आपको अगर अपने या किसी बाहर आप कहीं पर जा रहे हो, to keep the dogs, if people have dogs, to keep them right or in favor of you, you just need to know their right name basically. आपको उनका सही नाम पता होना चाहिए. And show them love, और उन्हें थोड़ा सा लव आप मीन्स पैम्परनेस उनको दिखाते हो, then they don't disturb you or like bark at you basically. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. और जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी, और एक पुरानी सी पेंटिंग थी वहां पर, उसके वो पीछे थी बिल्कुल पेंटिंग. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. हॉरेस थोड़ा इस चीज को लेकर के हैरान होता है कि भाई बुक्स के अलावा वो जो है इस तरह की पेंटिंग्स को परचेज कर सकता है, बट दे टुक अप टू मच रूम. रूम मींस स्पेस, अंडरलाइन कर ले रूम को,
रूम मीन्स जो है हम बात कर रहे हैं जगह की। अगर जो है वो इस तरह की पेंटिंग्स को कलेक्ट करता है तो उसके लिए उसको जगह चाहिए, रूम चाहिए। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और इस तरह के छोटे घर में जो है बुक्स ही सही हैं, वो ये सोचता है। ही थिंक्स लाइक दिस बिफोर गोइंग अहेड। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स on the table and Horace felt his nose tickle. जब वो वहां से निकल रहा था, so what he found, बाउल मीन्स वहां पर एक बाउल रखा हुआ था उसमें फ्लावर्स थे टेबल के ऊपर, और हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उसको जो बड़ी गुदगुदी सी महसूस होती है अपनी नोज में, गुदगुदी महसूस करता है, टिकल महसूस करता है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, और उसको छींक भी आ जाती है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और वो जो है अपने बैग को वहीं पर रख देता है। He carefully arranged his tools, अपने tools जो भी tools वो लेकर के आया था to open the safe. He had 4 hours before the servants returned. उसके पास 4 घंटे थे इससे पहले कि सर्वेंट्स जो थे वापस आते। इससे पहले कि सर्वेंट्स हैं वापस आते, उसके पास 4 घंटे थे। Now the safe was not going to be hard to open. अब उसके लिए सेफ को ओपन करना तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कैन यू गेस कि उसके लिए सेफ को ओपन करना इतना डिफिकल्ट क्यों नहीं था? क्योंकि वो लॉक्स बनाता था, उसको हर तरह के लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ही हैड इनफ नॉलेज टू अनलॉक द लॉक्स, राइट एवरीवन? दिस वाज द सोर्स दैट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। दैट मीन्स कि सेफ को ओपन करना इतना हार्ड नहीं था। After all, he had lived with locks and safes all his life. आखिरकार उसने तालों के साथ और ये इस तरह की सेफ्स को ओपन करने में ही अपनी जिंदगी गुजार दी है। The burglar alarm was poorly built. Poorly means खराब तरीके से। जो burglar alarm था, जो alarm means if someone gets in the room to steal something or to rob the house, there was an alarm basically that gives a sign, वो बजने लगता है अलार्म बेसिकली, और उसको बड़े खराब तरीके से बनाया गया था। poorly built means its technology not was that good कि भाई इसको जो है सेफली यूज किया जा सके। he went into the hall to cut its wire, और वो जो है हॉल में जाता है और वहां पर जाकर के इस अलार्म की वायर को कट कर देता है। He came back and sneezed loudly. अब वो वापस आता है और जोर से स्नीज करता है, जोर से। As the smell of the flowers came to him again. और दोबारा से जो है फ्लावर्स की जो स्मेल थी वो उसको आती है, जिसकी वजह से उसकी छींक निकल आती है। हे फीवर उसकी प्रॉब्लम है वहां पर। How foolish people are when they own valuable things. Horace thought. हॉरेस ये सोचता है कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं, फुलिश कैसे हो सकते हैं, जिनके पास इतनी वैल्यूएबल चीजें होती हैं। वो क्या करते हैं? अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। किसी एक मैगजीन के आर्टिकल ने ये एक्सप्लेन किया हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था इस घर के बारे में, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स। इस घर में जितने भी रूम्स हैं इन सब का प्लान उसके अंदर था। अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, इस रूम की पिक्चर थी। The writer had even mentioned that the painting had a safe. और उस राइटर ने ये भी मेंशन किया हुआ था कि इस पेंटिंग के पीछे जो है सेफ है, तिजोरी रखी हुई है। But Horace found that the flowers were hindering. Students underline this hindering word means to create obstacle, to create problem, रुकावट बन जाना बेसिकली। हॉरेस को क्या मिलता है बेसिकली? ये फ्लावर्स जो यहाँ पर रखे हुए थे ये उसके काम में बाधा डाल रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। In his work, he buried his face with his handkerchief. और वो जो है अपने चेहरे को जो है छिपा लेता है अपने हैंडकरचीफ के साथ, अपने रुमाल के साथ। Then he heard a voice say from the doorway. और फिर उसको जो है दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है। What is it? ये क्या है? A cold or a hay fever? क्या तुम्हें कोल्ड है या फिर तुम्हें कोई एलर्जिक है? ठंड तो नहीं लगी हुई या फिर एलर्जी तो नहीं है तुम्हें? That need to be justified first. What is this all going on? Children, before he could think, इससे पहले
कि वो सोचता, कुछ कंसीडर करता, हॉरेस सेड हे फीवर, बिना सोचे उसने बोल दिया कि उसे जो है हे फीवर है, एलर्जी है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से फिर वो एकदम से स्नीज कर देता है स्नीजिंग करता है। द वॉइस वेंट ऑन, और उसकी जो वॉइस थी, बैकग्राउंड से वो वॉइस सुन रहा था थ्रू द डोर, दोबारा से फिर सुनाई देती है, यू कैन क्योर इट, तुम इसको ठीक कर सकते हो विद स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर तुम ये भी पता चल जाए कि किस तरह के फ्लावर से, पौधों से, प्लांट से तुम्हें ये डिजीज या एलर्जी होती है, देन यू कैन फाइंड इट आउट एंड क्योर इट, तुम इसको क्योर कर सकते हो। आई थिंक यूड बेटर सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, कि अगर तुम अपने काम को लेकर के सीरियस हो, अपने वर्क को लेकर के आप सीरियस हो, देन you'd see a doctor basically, कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए basically, you'd see I heard you from the top of the house just now, मैंने तुम्हें जो है अपने घर की बिल्कुल टॉप, ऊंचाई से तुम्हारी ये आवाज सुनी, when I was working there or doing something else basically, वहां पर जो है तुम्हारी आवाज गई of sneezing, स्नीज करने की, छींकने की। So dear children, that's enough in the reading session for today's. I want to give you people a chance to ask any word meaning or to talk you want to see. You'll be given a time to ask. Let's see how many of you want to ask the question or discuss the things. You have enough time. I'm allowing you to unmute yourselves, but make sure only those children will unmute, those who want to ask the question. Question should be relevant enough